students, today I'm going to explain you chapter 7 of class 3rd. The name of the chapter is means of transport. Okay, means of transport basically means the different ways of transport, of traveling from one place to another. This is basically means of transport. Okay, so we can do transportation through so many ways, but particularly in this chapter we are going to study about some kinds of transport which we do in today's world. Okay, so children have to travel to school. Basically they are trying to say that we do travel through so many ways. Okay, it can be going to school. If you want to go school, then you are traveling from your home to school. If you are going to office, then you are traveling from your home to office. So can be so many ways through which you need to travel from one place to another. So what are the ways you use to do such kind of traveling? So we use different means of transport: two-wheelers, four-wheelers, buses, trains, aeroplanes. These are commonly used vehicles which we through which we do traveling. Okay, we cannot use the same means of transport to go all the places. Why? If you want to go another country, then you cannot use just same means of transport. On cycle you cannot go to another country. Okay, you need different means of transport for do easy traveling. Okay, so we cannot use same kind of transport. The means of transport we use depend on the distances we need to travel and money we can spend. यानी कि हम वो transport use करते हैं जो हमारी traveling के लिए easy हो और अपने budget के according हम transport को use करते हैं. ठीक है, यहाँ पर कुछ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स है, जैसे कि प्लेसेस टू गो, आपको कहाँ जाना है. फॉर एग्जांपल स्कूल या नियर बाय प्लेसेस के लिए जाना है तो आप बाइसाइकिल, बस, कार, स्कूटर इन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करोगे. अगर आपको नेबर की सिटी में जाना है तो थोड़ा बस, कार, स्कूटर जैसे ट्रांसपोर्ट यूज़ होंगे. कहीं दूर जाना है, फॉर एग्जांपल कलकत्ता से चेन्नई जाना है, तो आप ट्रेन या एरोप्लेन को यूज़ करोगे. ठीक है, इस टाइप से अलग अलग कंडीशन के हिसाब से, अलग अलग नीड के हिसाब से आप ट्रांसपोर्ट्स को यूज़ करते हो. ठीक है, अब कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्ट्स होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो ब्रॉडली वी हैव लैंड ट्रांसपोर्ट्स, एयर ट्रांसपोर्ट्स एंड वाटर ट्रांसपोर्ट्स. आई होप द नेम इज itself suggesting that land transports are designed to do transportation from one place to another on land. यानी if you want to do traveling on the land in your entire journey, then this is called land transport. And air transport are those transports which do traveling in air, and water transports are those transports which do traveling in water. I hope this basic information is clear. Now let's some detail about one by one in each topic. So first we have land transport. So land transports are those means of transportation which are used to travel on land. We have already discussed this. In cities, land transports run on पक्का रोड. यानी कि cities में जो land transports होते हैं वो पक्के रोड्स पे बनते हैं, यानी कि जो सॉलिड रोड्स है. फॉर एग्जांपल इस टाइप की जो स्मूथ है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है, इस टाइप की रोड्स को पक्का रोड्स बोला जाता है. इन रूरल एरियाज दे रन ऑन कच्चा रोड. ठीक है, यानी कि रूरल एरिया में कच्चे रोड पर चलती हैं क्योंकि वहाँ लैंड इतना ज़्यादा नहीं होता है, इतना डेवलपमेंट वहाँ नहीं होता, तो वो कच्चे रोड्स पर चलती है, थोड़ा सा जो रफ सरफेस होता है. ओके, there is another mode of land transport but it does not run on road, it runs on rails. यानी कि एक और लैंड ट्रांसपोर्ट है जो कि रेल के ऊपर चलता है. आप समझ गए होंगे, मैं ट्रेन की बात कर रही हूँ. ये रेल पे चलता है, ये भी लैंड ट्रांसपोर्ट में ही आता है, लेकिन ये रोड पर नहीं चलता है. ओके, इट इज़ द ट्रेन. अ ट्रेन रन्स ऑन अ रेलवे ट्रैक. ट्रेन रेलवे ट्रैक पर चलती है. ठीक है, road and rail transport are the most commonly used modes of transportation in our country. Obviously रोड और रेल ट्रांसपोर्ट बहुत ही कॉमनली हमारे इंडिया में यूज़ किया जाता है. आप कोई भी ट्रांसपोर्ट लेकर देख लो. द अदर मोस्ट कॉमनली यूज मोड्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट आर बाइसाइकिल, स्कूटर, मोटरसाइकिल्स, कार, बसेस, थ्री व्हीलर्स एक्सेट्रा. छोटी प्लेसेस पर जाने के लिए हम इन चीज़ों को कॉमनली यूज़ करते हैं. रेलवेज आर द वीन्स ऑफ आवर कंट्री. The connect almost all major towns and cities of our country. यानी कि ये जो रेलवेज है ये ऑलमोस्ट सभी टाउन सिटीज़ तक जा रही हैं, जिससे कोई भी इंसान ट्रेन की थ्रू अपनी ट्रैवलिंग दूर तक के डिस्टेंसेस के लिए भी कर सके. Rail transport is used for traveling long distances in busy cities like Kolkata, Delhi, Mumbai and Chennai. There are trains that move in local. ठीक है, यानी कि इनमें जो ट्रेन है लोकली मूव की जाती हैं. ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी बिजी सिटीज़ है, यहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए बहुत सारे लोग जो है आते हैं, तो नंबर ऑफ पॉपुलेशन ज़्यादा, तो नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ ज़्यादा है. ठीक है, द अंडरग्राउंड रेलवेज इज कॉल्ड मेट्रो. यानी कि जो रेलवेज अंडरग्राउंड चलती हैं उनको मेट्रो बोला जाता है. ठीक है, फॉर एग्जांपल दिस
The metro trains run in Kolkata, Delhi and Mumbai. They run on land and overbridge also. Traveling long distances is cheaper and convenient by railway than traveling by road. यानी कि रेलवे के थ्रू ट्रैवलिंग होती है वो सस्ती हो जाती है और कन्वीनियंट यानी कि यूज़फुल है, अच्छी है देन ट्रैवलिंग बाय रोड, यानी कि रोड में ट्रैवलिंग करने से बेहतर है। ठीक है, टू ट्रैवल शॉर्ट डिस्टेंसेस कार बसेस आर बेस्ट सूटेड, फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस वी कैन यूज स्कूटर्स एंड थ्री व्हीलर्स। करते हैं शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए हम स्कूटर्स और व्हीलर्स यूज़ कर सकते हैं। अपने घर से अपने दोस्त के घर जाने के लिए आप ट्रेन यूज़ नहीं करोगे। ठीक है, इंडिया में सबसे पहली मेट्रो कोलकाता में स्टैब्लिश हुई थी 1984 में। नेक्स्ट वी हैव एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा मॉडर्न मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, और ये सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट है, यानी कि लैंड और वाटर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में एयर मोड सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, जैसे कि हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है एयर ट्रांसपोर्ट्स में। ठीक है, लेकिन एयर ट्रांसपोर्ट में बहुत सारे लोग नहीं आ सकते। आप देख सकते हो इतना छोटा सा तो है, कितने लोग आ जाएंगे इसमें। ठीक है, इसलिए इसे ट्रैवलिंग के पर्पज से कम यूज़ किया जाता है और आर्मी फोर्सेस वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ट्रैवलिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एयर ट्रांसपोर्ट है हमारा एरोप्लेन। ठीक है, it does not need a long runway like an aeroplane. It can reach almost anywhere where even a plane cannot. ठीक है, अच्छा ये खास बात भी है हेलीकॉप्टर में कि कई जगह चला जाता है जहाँ पे एरोप्लेन भी नहीं जा पाता है। ठीक है, इट इज़ यूज टू रेस्क्यू पीपल और टेक देम टू प्लेस विच कैन नॉट बी रीच बाय लैंड और सी। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है हेलीकॉप्टर का कि फॉर एग्जाम्पल कहीं पर फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, कोई भी मिस्टीव प्रॉब्लम हो गई, वहाँ पर एरोप्लेन नहीं जा पा रही क्योंकि एरोप्लेन को लैंड करने के लिए जगह चाहिए होती है। तो वहाँ पर हेलीकॉप्टर क्या करते हैं, ऊपर से उनको फूड शेल्टर या जो भी उनकी ज़रूरत होती है वो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हेलीकॉप्टर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव रोपवेज। रोपवेज आर ऑपरेटेड इन टूरिस्ट प्लेस लाइक गुलमार्ग, मसूरी एंड हरिद्वार। यानी कि जो रोडवेज है यानी कि ये टूरिस्ट लोग यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग करने के लिए ऐसी इन जगहों पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग के लिए लोग बहुत ज़्यादा आता है, तो इन जगहों पर एक नई काइंड की ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है जिसको रोपवेज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ ये रोप के थ्रू ट्रैवलिंग होती है इसलिए रोपवेज बोला गया है। ठीक है, प्लेन्स टेक पीपल फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन अ वेरी लिटिल टाइम। जो प्लेन्स होता है वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में बहुत जल्दी चला जाता है। एज वी हैव स्टडीड दैट एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट्स की डिसएडवांटेज ये कि ये बहुत महंगा होता है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट वी हैव वाटर ट्रांसपोर्ट। बोट्स एंड स्ट्रीमर्स कैन ओनली कैरी ओनली अक्रॉस रिवर्स एंड लेक्स। यानी कि जो बोट्स और स्ट्रीमर्स होते हैं ये सिर्फ रिवर्स और लेक्स में ही होते हैं। ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल्स हैं। अब सिर्फ रिवर्स और लेक्स में ट्रांसपोर्टेशन करना है तब आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा बिग नहीं होती हैं, ये सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होती हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी जो आपको बोट्स दिख रही है ये शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होती हैं। शिप्स आर यूज टू ट्रैवल ऑन ओशंस एंड सीज। यानी कि अगर आपको बड़े बड़े ओशन में बहुत बहुत दूर जाना है तो आप शिप्स का यूज़ करते हो। ठीक है, ये बड़ी होती है साइज़ में और जनरली अच्छी होती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, स्पेशली जब आपको एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना हो तो। ठीक है, बट शिप्स का डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा स्लो चलती हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट बाय सी इज़ चीपर देन रोड, रेल और एयर ट्रांसपोर्ट। यानी कि सी के थ्रू ट्रांसपोर्ट करना सस्ता पड़ता है रोड, रेल और एयर ट्रांसपोर्ट से। ठीक है, क्योंकि आप समझ सकते हो अगर आप रोड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करोगे तो बहुत ज़्यादा टैक्स वगैरह भी लग जाता है। ठीक है, Some modern modes of water transport are ferries, cruise and hovercraft। ठीक है, कुछ modern modes of water transport है। हालांकि जो hovercraft है वो आजकल लैंड के ऊपर भी चलने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन गुड। यानी कि हम ट्रांसपोर्ट को सिर्फ व्हीकल्स को यूज़ नहीं करते हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हम एनिमल्स को भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यानी कि टू कैरी गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय पुलिंग द कार्ट वी यूज डिफरेंट एनिमल्स। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम अलग अलग एनिमल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, इन थिक फॉरेस्ट वी यूज एनिमल्स, जैसे कि घने जंगलों में एलिफेंट्स का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस एलिफेंट इज कैरिंग अ वुड। ओके, फॉर कैरिंग हैवी लोड्स, यानी कि कोई बहुत बहुत भारी सामान है तो हम एनिमल्स के थ्रू उससे ट्रांसपोर्टेशन कराते हैं। ठीक है, पोनीज एंड म्यूल्स आर वेरी यूजफुल इन हिल्स। इनको बहुत ज़्यादा यूजफुली हिल्स में यूज़ किया जाता है इन दोनों एनिमल्स को, और कैमल्स को तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है डेजर्ट्स में। ठीक है, तो ये कुछ एनिमल्स हमने पढ़े जो हम फॉरेस्ट वगैरह में, यानी कि इन एनिमल्स को भी हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं। सो आई होप यू हैव अंडरस्टैंड ऑल द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हियर आवर चैप्टर कंप्लीट्स। थैंक यू।